Hello, everybody. Hello, Monica ma'am. Good Hi, how are evening. you? Yeah. Good, So I think good. sir is taking a little time today, so we can say he's a little late for joining the class. He was not well Okay. today, so it might take a little time. So I think new people who have joined in are Nazanin, Tulip is there. All other people I think are already like I already know them by face or I've already talked to them. So people who have joined in new, if they can give their introduction. Nazneen is Ma'am, you know me. I've been participating. You know me. It's that you've I have just not. forgotten Okay, something. Yeah. okay, great, great. Still, for other people, you can just tell, give your brief introduction. Nazneen, can you do that? Okay. Tulip is there. Tulip, can you introduce yourself? I think you're joining for the first time. And do please switch on your videos so we can have a physical interaction too. Hi, Pratibha. How are you? I can't talk. Today, I think it's going to be a very interesting topic. Something, Yes, yes. yeah. I am also like Yeah. it's going to be something very good. I was thinking that the topic is very, very interesting and you learn the basics. So how is your going on with that, Pratibha? You just chose the topics, now I suppose for that. Ashi, you have also chosen the topic. Are you going to be a speaker on these Hello, ones? good evening. Good Good evening, evening, sir. everyone. Good evening. Sorry for delay. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good Good evening. evening, Good evening, sir. everyone. Good evening, everyone. How many new members are here? नए कितने लोग हैं आज? इंट्रोडक्शन जिनका बाकी है. Sir, me, I guess. Yes, Tulip, and okay. Yes, Tulip, you can introduce yourself. Then we can start. So, hello everyone. My name is Tulip Chatterjee and I'm from Kolkata. I am a student right now and also learning graphology. So, yeah, thank you. That's all. Okay. Yeah. Okay. Yes, Monica, I need your help basically. Yes, sir. बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल स्लाइटली, तो आप 10 मिनट जरा सा इंट्रोड्यूस कर लीजिए, बाकी लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन कर लीजिए, देन आई कैन कवर अप. आई नीड 10 minutes, you can continue. Sure, sir. Sure. Yes. Okay. Basically, So, I just introduce one thing. Just Graphodial is basically a platform where you can ask any questions basically, because इसको हमने स्टार्ट किया करीब 2 साल हो गए और एवरी संडे हम ये करते हैं, और इसका इंटेंशन ये है कि एनीवन कैन आस्क एनी क्वेरी रिगार्डिंग ग्राफोलॉजी. हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स पे कोई भी टॉपिक से आप पूछ सकते हो. मतलब मेन इसका इंटरेस्ट, इसका जो मोटो है ये वाले ग्रुप का, कि आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो जस्ट बी रेडी विथ क्वेश्चंस, एंड इन द मीन टाइम 5 minutes मोनिका विल टेक केयर दैट क्लास और एक इंटरेक्शन. तो आज बहुत बहुत यूनिक टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं. सिमेट्रीज जो है वो राइटिंग पे और ये लेटर्स पे कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओवर टू मोनिका. yes, sir. So I have already introduced myself. I'm Monica Bansal. I am Delhi located by location and interacting with people from all over India that through this platform. So this is this platform is known as a Graphodial platform, which sir already told that this is a platform that has been going on from last 2 years. This is a platform for anyone who's interested in graphology
to connect with us and ask any kind of questions relating to graphology. Plus, the usual format of this platform is that we take a topic and there is something interesting that every time sir gives us a new information, a depth into graphology. So this is a very good initiative, or I would say very big learning platform for graphology or any of the graphologists. Uh, Taking to that, I think there are many new people who are joined with us. Like I could see Tulip was there, and if you talk about for me, Nazin, I can't recognize her. Nazin is there, taking few minutes to the topic that is about symmetry. That how symmetry is going to be seen in the handwriting and what is its interpretation, how are we are going to see it as a graphologist through the eye of a graphologist. So I think I have introduced, sir. If you want to go ahead, we can start it from here. Monica, hi, Yeah. Anita here. I've sent two images in our group. Yeah. I have a query in those two Okay. images. Okay. So you want me to share them? Like what? Yeah, I have sent it in a webinar, Zoom webinar. Yeah. Yeah. Okay, okay, one second. If anyone can share, मोनिका अगर आप शेयर कर सकते हो या आप उसको दिखा सकते हो तो मुझे एक बार आइडिया लग जाए क्या है queries. So then Because I I have to think go थोड़ा out share. and then I have to come in. No, I have to go. don't tell every time this excuse. If you can, then you Yeah, you sir, discuss. sir, Otherwise, it's I'll a difficult rejoin. for me. मेरे लिए Yeah, बहुत सारी difficulties है because Yeah, there are give me a different minute, sir. admin I'll team. do it. Yes, please. Yes, any other So it queries? is about the Let me eye dotting. Can you share that formation? So Pratibha, yes, I is can make possible? it and share. Yeah. Fine. Just give me Make a it fast. Make it fast, please. Mm-hmm. Any other queries? Any other member? Any other queries? Jaspal, can you entertain just 2 minutes? Yeah, sure, sir, no problem. Good evening, everyone. Good evening. Now, I was about to show this, जो ये picture भेजी गई है, in case you would like to see it. Yeah. ओके इसका मुझे आप क्या पूछना चाहते हैं थोड़ा सा जूम करके जसपाल मुझे जूम करके बताओ ये क्या लेटर्स है अंजना जी बहुत क्रिस्प बताने की कोशिश करिए आई डॉट है ये तो आई डॉट अगर पीछे जाता है मतलब फर्स्ट Sir, I have shared the screen. Yeah. 1 और 2 में दोनों में भी वो पीछे जा रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन में बट एक में एरो जो है वो मतलब दोनों का एरो का डायरेक्शन अलग है दोनों पीछे है बट एरो शेप है एरो है दोनों में एरो है ओके दोनों पीछे अभी है एक सेकेंड एज अ ग्राफोलॉजिस्ट कभी भी कोशिश करिए उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए नहीं तो अगर आप 10 लाख फॉर्मेशन भी अगर आप सीखेंगे ना तो उसके आगे वाला भी चैलेंज है दुनिया में किसी की राइटिंग सेम नहीं है ओके तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या है देन यू कैन आस्क विद एनी एक्सपर्ट्स कि इसका मीनिंग पॉसिबिलिटीज और क्या क्या हो सकती है दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग राइट व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन आपको क्या लगता है या आप उसके बारे में क्या बता पाते हो है ना तो वन बाय वन Yeah, for the first one, we can say that it is relating to the past and it is invited outwards. It's coming, that invitation comes to him, but it is like, it is, the reaction is outward. Okay. And that is also past. It is relating to the past, the first one. No, but what is the meaning of the cap? The cap just means that it is like, अगर हम एक चंद्रमा बनता है, that crescent moon बनता है कई बार. Have you seen इसमें तो angular है. नहीं, one second. Let me explain. Let me explain, Monica. 1 second. मैं जैसे पहले समझने की कोशिश करूं कि ये फॉर्मेशन अंजना आपने जो देखा है ये फॉर्मेशन राइटिंग में है राइट राइटिंग फॉर्मेशन बिकॉज राइटिंग और लोगो में दोनों में डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा राइटिंग में फॉर्मेशन हाँ ये वाला आई डॉटिंग है इसमें जो है ये इसका विल पावर जो है ये पास्ट में है दैट पर्सन इज स्टक इन पास्ट ओके कौन सा नंबर बता रहे हैं कौन सा नंबर मैं फर्स्ट बता रहा हूँ एक सेकंड पर हम इसमें बेसिकली
नहीं, एक सेकंड, ये जो है, ये वाला जो है, दिस पर्सन इज प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा इसमें, बिकॉज ही इज स्टक इन पास्ट, स्टक इन पास्ट, बट उसका ओरिएंटेशन जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेशन है, मतलब पास्ट में तो है बट उसको लाइफ में कुछ तो अचीव करना है ना, ही वांट्स टू, हाँ, उसको पास्ट से निकलने की कोशिश है, वो निकलना चाहता है, राइट, पास्ट से निकलना चाहता है, मतलब इसमें डबल डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये है कि इसको फॉरवर्ड थिंकिंग है, बट किसी कारण से वो निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। सेम इसमें इस केस में क्या, वो पास्ट में भी है और पास्ट में भी, इस दूसरे वाले में इनहैंसमेंट हो जाएगा, सेकंड वाले में ये इनहैंसमेंट है, पास्ट का भी इनहैंसमेंट है, एरो का भी इनहैंसमेंट है, राइट। इस कंपैरेटिवली ये वाला बेटर है ग्रोथ के लिए, फर्स्ट है ना, वाला। इसमें इस फर्स्ट वाला, इसमें ये दोनों में नेगेटिविटी इनहैंस हो जाएगी, राइट। अब इसमें दूसरा फॉर्मेशन क्या था आपका, थर्ड एंड फोर्थ में आगे है, आई डॉट इसमें आगे। एक सेकंड, मेरे को देखने दीजिए, दूसरे में है, राइट, सेकंड इज, सर सेकंड आपने एक्सप्लेन किया ना अभी। नहीं, सेकंड मतलब ये नंबर 3 and 4, आई कैन एक्सप्लेन नंबर 3 and 4, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए और जितना भी है उसको समझने की कोशिश करिए, बिकॉज इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल थ्योरीज हैं, इसमें बड़ी थ्योरीज हैं, अगर ये लोगों के लिए होगा तो इसका अलग मीनिंग हो जाएगा, बट एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, इसमें नंबर थर्ड वाले में जो है, ये दिस पर्सन इज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, लाइफ में कभी भी आगे जाना चाहता है, बट उससे उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये ओरिएंटेशन इसका पीछे है, मतलब आपने गाड़ी को एक्सीलरेटर दिया है लेकिन गाड़ी बंधी हुई है कहीं ना कहीं से, कार इज इन फुल स्पीड, बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ हेजिटेशन, ये हेजिटेशन हो जाएगा, ये विड्रॉ कर, मतलब सक्सेस से विड्रॉ करने की टेंडेंसी आ जाएगी, या ग्रोथ से विड्रॉ करने की टेंडेंसी है, ठीक है, इसमें दोनों इनहैंस हो जाएगा, ये सक्सेसफुल है, आगे की तरफ है, ये इम्पेशंस, इसमें इम्पेशंस हो जाएगा, ये बंदा इम्पेशेंट है, क्योंकि एरो शेप है अपने आप में, वो एंगर है, सॉरी एंगल है, तो उसमें अनईजीनेस, वो सब सारी चीजें आ जाएगी, प्लस क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, ओके, इसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी, इसमें एक फॉर्मेशन और भी हो सकता है, और क्या हो सकता है फॉर्मेशन इसमें, और कोई पॉसिबिलिटी, सर्कुलर वाला, सेम इसी में सर इसमें सर्कुलर, कैप बन सकता है, उल्टा कैप। नहीं सर्कुलर नहीं, इसमें चारों फॉर्मेशन तो आ गए हैं, आई थिंक, So the cap can, so the arrow can be down towards the eye and upwards towards the नहीं, sky. वो डाउन हो सकता है, वो सब डाउन हो सकता है, उसका मीनिंग हो सकता है, इसमें इनका मीनिंग है कि ये आई थिंक देयर इज 4 कॉम्बिनेशंस ओनली, शेप आगे पीछे हो सकता है, अभी और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, ये उल्टा हो सकता है, वैसे हो सकता है, राइट, so these are 4 formations. Sir, can you explain the fourth one again? Fourth one is he is future oriented, that person is future oriented, Impulsive and future oriented. हाँ, इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड, इसमें प्रेजेंट मिसिंग है, इसमें चारों में प्रेजेंट मिसिंग है, है ना, प्रेजेंट मिसिंग है, इसमें इम्पेशंस एंड डेस्परेशन हो जाएगा, डेस्परेशन फॉर फ्यूचर, ये भी इनहैंसमेंट है, ये दिस इज पॉजिटिव इनहैंसमेंट, फोर्थ वाला पॉजिटिव इनहैंसमेंट है। सर सब में जो इरिटेशन है, सब में इरिटेशन इज इन्फ्लिक्टेड आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो उसकी इरिटेशन है वो बेसिकली इट इज एग्रेशन या जो भी स्ट्रेस है दैट इज इन्फ्लिक्टेड आउटवर्ड्स, आई थिंक फर्स्ट, और हम लोग जो बात कर रहे हैं सेकंड में, यहाँ पे नहीं, इसमें कॉम्बिनेशंस के साथ में उसका वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी होगी। एनीवन फ्रॉम रिसर्च ग्रुप, एनी न्यू मेंबर्स, एनीवन फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, एनीवन अगर वो एक्सप्लेन कर पाए कि इसमें इसके वेरिएशंस क्या होंगे, इमोशंस पे इफेक्ट क्या होगा। No one is from psychology background. I can, Miraj, if you can. Sorry, sir. Please tell again. I don't hear. Because This angle shape में उसके लाइफ में इमोशंस को लेके या उनके बाकी एरियाज में क्या क्या फर्क होगा, बिकॉज एक का एंगल राइट साइड में है, कल एंगल लेफ्ट साइड में है, तो उसके लाइफ में अगर इमोशंस की बात करें, उसको रिस्क टेकिंग की बात करें, तो कहाँ पे डिफरेंस आएगा। If we can consider if you this kind of arrows
combination with different slants and different pressure, how can you interpretation of that arrow? Sir, Anyone can plan. Please, members, this is a very good opportunity कि आपको immediate कुछ भी बोलने का मौका मिलता है. मतलब I just want to introduce you people. मैंने इंटरैक्टिव सेशन ही इसके लिए स्टार्ट किया कि आपको इमीडिएट बोलने का रेडी मौका मिलने, कहीं पे भी आपको मतलब जहां पे भी लिंक खत्म हो, यू हैव टू स्टार्ट. अदरवाइज क्या होगा ना, लर्निंग आपकी बहुत वीक होती चली जाएगी. So good evening, sir. Interest. Sir, may I explain? One Sir, second. Is there any new member? Yes, sir. No, I I'm think not a new Deepak member. was the- Yeah, I'm not a new member. Okay. But I said good evening. Okay, Sir, okay. Good evening. Let Miraj explain. yeah. Yes, Miraj. I was saying that it was basically a desire to in be the- different. Sir, in the picture, in first number, we saw that. Please share the picture that everyone understand. And Yes. in fast starting, they have the high pressure and plasticity, more pressure. But after because this angle have the variation in 1 and 2. Into middle part, the joining part, he's give the more pressure. So his life is not smooth. He's giving more pressure in some place. That's would be the one of the possibility to anxiety or other problem. No, Miraj, one second. Let me explain. Let me explain. In this case, this first one, okay, इसको कभी भी लाइफ में जो भी करना है, he has lots of enthusiasm to do something positive for future, okay, but technically he's stuck behind. So there are two kind of forces. इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है, there are two kind of forces कि उसको करने नहीं दिया जा रहा है कुछ भी चीजें ना, उसको ग्रोथ तो करना है, उसको पढ़ना है, उसको लाइफ में कुछ करना है, but there is some kind of I can say some kind of foundation is there, है ना. अब फाउंडेशन कुछ भी हो सकती है, दूसरे ट्रेड से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट. इसको because this arrow shows passion for future or some kind of what can you say, आप क्या बोल सकते हैं इसके लिए, इसको कुछ तो करना है, या इसका जो ड्राइव है, ड्राइव इज बेसिकली फ्यूचर ड्राइव है इसमें. दिस इज द फ्यूचर ड्रिवन, Right. no wants to be different, agree, but It is stuck in the past. The hand movement is futuristic. no one second, stuck in the past तो बहुत बेसिक सा उसका बहुत बेसिक रिप्लाई हो गया. अभी उसको एडवांस अगर आप काउंट करने की कोशिश करोगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेशर इज फोर्स इज देयर. वन फोर्स इज द दिस फोर्स, ये वाला जो है आपका ग्रोथ का फोर्स है, ठीक है. एंड ये जो डिस्टेंस है, जो बैकवर्ड डिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं से उसको इट इज पुलिंग बैक, not pulling back. He is not facing that challenges. He wants to do something extraordinary, but he is not ready to face the challenge part. And challenge and reality is where the reality. This is the reality part. इसका अलाइनमेंट जो है ना, इसमें डेफिशिएंसी जो होगी, ये वाला आपका प्रेजेंट है, ये आपकी रियलिटी है. ओके, तो he is far away from reality, but he wants to do something extraordinary. मतलब एक किसी इंसान का अपने पैर बांध दिया और भाग रहा है वो, है ना. ही इज रनिंग बट ही इज टाइड अवे, मतलब कहीं ना कहीं से बंधा हुआ है वो. तो उसकी ग्रोथ जो है वो, मतलब ये समझो कहीं ना कहीं से ये ट्रेडमिल पे भाग रहा है. राइट. तो स्टिल उसका मूवमेंट तो है, बट वो आगे नहीं जा पा रहा है, उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया. राइट. गॉट इट. इसमें जो है ये हमेशा दोनों बैकवर्ड हो जाएगा. ये भी बैकवर्ड है, उसको जाना भी पीछे है, और वो मतलब दोनों इनहैंस हो जाएगा, निगेटिव इनहैंस हो जाएगा, राइट. इसमें जो है वो स्टिल ही इज फॉरवर्ड, है ना, ही स्टिल इज फॉरवर्ड मोड, बट उसका इंटरेस्ट जो है वो मतलब ही इज मोर टुवर्ड्स सिक्योरिटी ओरिएंटेड. ही नीड्स सिक्योरिटी. ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी फेमस, बट देयर इज सम काइंड ऑफ insecurity is there, right. तो इनके केस में जरूर बहुत सारे चांसेस हैं कि पैसा आने के बाद में भी स्टेबिलिटी लैकिंग हो जाएगी, बिकॉज ये इंपल्शन है ना, तो इसमें सिक्योरिटी लैकिंग होगी, बिकॉज इसमें एंटी डायरेक्शनल मूवमेंट है, एक प्लस है एक माइनस है. इसमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगी. इसमें जब भी एंटी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ना,
तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी होगी। हम्म, फोर्थ वाले में नहीं होगा, इसके बाद पैसा आएगा, मतलब आएगा, इसमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। तो कॉन्फ्लिक्ट में हेल्थ इश्यूज एंड फाइनेंस इश्यूज रहेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज भी रहेंगे, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इस पर डेस्परेशन हो जाएगा। सर इन लोगों को इसमें डेस्परेशन है। हेल्थ इश्यू भी हो जाएंगे, पहले समझ लीजिए, हाँ, पहले समझिए फंडामेंटल में क्या समझा रहा हूँ। आप जब भी आगे जाओगे ये चीजें रह जाएगी। आप जब भी फ्लो में नहीं जाते हो ना, सेम क्वेश्चन, जब आप फ्लो में नहीं जाओगे ना तो आपका ब्रेन आगे का प्रोसेस करेगा, आपका फंडामेंटल छूट जाएगा। इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो आपके डिसऑर्डर्स वाली चीजें चालू हो जाएगी, डिसीज एंड डिसऑर्डर्स चालू होगी। इसमें डिसऑर्डर नहीं है, दिस इज द सेम फ्लो में है ये, राइट। तो दिस इज साइन ऑफ ग्रोथ, दिस इज साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ग्रोथ होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। आप जानते हैं किसी को भी आपने जानते हैं या खाली इमेजिनरी आपने बनाया या किसी को देखा है? एक्चुअली सर मैंने तो ये बहुत सैंपल्स में देखा है, हर बार मैं सोचती हूँ मैं पूछूंगी और रह जाता था, पर कभी भी लिख के पूछ लीजिए। संडे इसीलिए रखा है मैंने किसी को भी, इट्स फर्स्ट काइंड ऑफ सेमिनार या ग्राफोडायल, मतलब ये हेल्पलाइन सर्विस है जिसमें कभी भी किसी को भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। मतलब ये संडे का ये ग्राफोडायल इसीलिए, पहले हम लोग डायल करते थे, मतलब फोन पे बात होती थी, अभी हम जूम पे करते हैं, तो इसीलिए वो डायल है कि एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड कई बार ये सब चीजों का एक्सप्लेनेशन और उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है वो आपको मिलता नहीं है कहीं पे भी। यू कांट गेट एनी वैलिडेशन की व्हाई इट हैपेंस। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना, इसमें साइंस की थ्योरीज होगी, इसमें साइकोलॉजी की थ्योरी है, इसमें क्वांटम फिजिक्स होगी, बहुत सारी चीजें हैं कि उसका डायरेक्शन के क्या मीनिंग है। और लोगोज में अलग होगा क्योंकि लोगोज का इम्पैक्ट अलग होता है, तो इससे थोड़ा सा राइटिंग और लोगोज में थोड़ा सारे डिफरेंसेस होंगे। दैट्स व्हाई मुझे ये प्लस माइनस वाला थोड़ा और समझाइए, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये इनहैंसमेंट एंड डाइल्यूजन है, दिस इज इनहैंसमेंट एंड, हाँ ओके। तो कौन सा और फॉरवर्ड गया तो अल्टीमेटली फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ इन द थर्ड वन, he went back then he came forward। नहीं, दिस इज साइमल्टेनियसली है, वो कम मतलब बैक टू बैक नहीं है, ये साथ में ही है, दिस इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। हाँ, एक तरफ से वो ऑप्टिमिस्टिक, हाँ दोनों साथ में ही है, ऑप्टिमिस्टिक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, एक तरफ से बैक है, और पीछे भी मुड़ के देख रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, 10 कदम आगे जाना है, 3 कदम पीछे आना है, वैसा वाला है। I understood, लेकिन इसका जो इसका फाइनल प्लेसिंग है वो इसका फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, फॉरवर्ड है कि वो फ्यूचर की तरफ, ठीक है। तो अब हम जब इन दोनों चीजों को क्लब करेंगे, ठीक है, कि वो भाग रहा है फ्यूचर की तरफ, उसका अटेंशन सारा फ्यूचर की तरफ है, और प्लस लेकिन वो मुड़ मुड़ के देख रहा है। नहीं, वो मुड़ के नहीं देख रहा है, वो उल्टा होके भाग रहा है, इस तरीके से आप समझ लो, वो मुड़ मुड़ के नहीं देख रहा है। मुड़ के देखने वाली चीजें अलग है, इसमें ये उल्टा भाग बैक गियर में जा रहा है ये, ठीक है ना। बट इसका जो इंटेंशन है, इंटेंशन इज बैकवर्ड, मूवमेंट इज फॉरवर्ड, समझ, ठीक है सर, है ना। ये ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ इसका है फॉरवर्ड वाला, प्लेसमेंट इज फॉरवर्ड है बट इंटेंशन इज बैकवर्ड है, ठीक है सर। ओके। तो ये जो एरो है ये उसका इंटेंशन डिफाइन कर रहा है, उसका डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, और जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट डिफाइन कर रहा है। प्लेसमेंट डिफाइन करेगा कि आप कितना दूर जा रहे हो, कितना फ्यूचर में सोच रहे हो, और ये शेप जो है ये आपका इंटेंशन डिफाइन करेगा कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका प्रोन क्या है, द डायरेक्शन एंड व्हाट डू यू थिंक बेसिकली। होगा सर, और अगर ये बिल्कुल प्रेजेंट में आके कैप की तरह होगा तो, प्रेजेंट में आके कैप की तरह होगा तो मतलब ये इस तरीके से होगा तो सर नहीं, अदर वे राउंड, कैप टेंट की तरह। चलिए दोनों बताइए आप लोग। ये एंगुलर है, एंगल है बेसिकली। हाँ, ये वाला प्रेजेंट में है, मतलब ही इज वेरी पंक्चुअल, बट दिस इज पास्ट ओरिएंटेड। पास्ट ओरिएंटेड मतलब ये इसको आपकी वैल्यू आप देखेंगे कि ये हमेशा पास्ट की तरफ, इंक्लिनेशन पास्ट के लिए होगा, है ना। ही इज मोर कंसर्न टुवर्ड्स पास्ट एंड ही इज मोर कंसर्न टुवर्ड्स फ्यूचर, बट ये प्रेजेंट में है, इसका डायरेक्शन जो है वो फ्यूचरिस्टिक या पास्ट में है, बट ये प्रेजेंट में है, ही इज एंजॉयिंग हिज प्रेजेंट,
ही इज एंजॉयिंग दैट रियलिटी, है ना, रियलिटी को एंजॉय कर रहा है। इसमें एक डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, ऐसा भी क्रॉस हो सकता है। आई थिंक किसी कंपनी का लोगो है ये। So what about This is this like creative. this? Which one? प्रतिभा आप जूम करो तो समझ आएगा, मुझे क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। So यहाँ पे देखिए, अगर कैप उल्टा और ऐसा सीधा बना है तो और जूम करना पड़ेगा प्रतिभा, दिखाई नहीं दे रहा। मतलब वी शेप है क्या? yes, this one. इज दिस Yes, वी sir. शेप? Yes, sir. वी शेप में वी का मतलब होगा एक एनालिटिकल होगा और एक शार्प माइंडेड होगा। दिस इज शार्प माइंडेड एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल। ओके, द एनालिटिकल एंड शार्प माइंडेड, बट दिस Right, sir. फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड एंड सेकंड इज सेल्फ ओरिएंटेड होगा। दिस इज गोइंग टुवर्ड्स डाउन, वो डायरेक्शन का मीनिंग होगा। अपवर्ड्स वाला वो डिवाइन होगा, नीचे वाला होगा वो सेल्फ Right, sir. क्रिटिसिज्म वाला होगा, सेकंड वाला सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा। Right, ओके, sir. तो ये वाला हमने ये वाला कवर कर लिया। मोस्टली आप ये वाला बोल रहे थे, ठीक है? Yes, sir. Yes. चलिए, सर Okay, मैंने और any एक स्लाइड दिया है, और एक स्लाइड है उसके पीछे ही। और एक स्लाइड्स। सर आप वो लोगों के बारे में बता रहे थे, उसका प्लीज बताइए। कौन सा? हाँ, ये वाला। इसमें ये कंफ्यूजन है, क्रिएटिविटी है। दैट पर्सन इज एट टाइम्स कंफ्यूज बट जी, sir. क्रिएटिव आल्सो, एंड दिस इज बॉन्डिंग भी काउंट करते हैं। जो चेन शेप है ना, चेन लाइक चेन, so this is a sign of integrity, sign of bonding. So it shows a person is very much committed, the sign of commitment है वो, वैसा दो है ना चेन सिस्टम। तो तो सर आई में है तो इसकी क्रिएटिव। और एक बढ़ जाए, अगर इसकी चेन और डीएनए जैसा अगर उसका स्ट्रक्चर आ जाए, सर्कल्स जैसा थोड़ा साइड में से राउंडेड, और उसकी और एक चेन बढ़ जाए, तो फिर उसका मीनिंग कैसे रहेगा सर? डिपेंड्स कंपनी कौन सी है वो फिर कंपनी काउंट करेगी। मतलब मल्टीपल चेन आप कर रहे हो ऐसा, मतलब काइंड ऑफ इट मे बी दिस। सर अगर ये चेन, 50 फिंगर आ रहा है इसमें। हाँ, ये वाला ऐसा अगर मल्टीपल चेन है, हाँ हाँ, ओके, तो डिपेंड्स कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस पे डिफाइन करता है फिर क्या होगा। एक सेकेंड। अच्छा, मतलब काइंड ऑफ चेन इस तरीके का चेन है, या फिर मल्टीपल चेन है, तो ठीक है। तो ये जितना भी है, दिस इज साइन ऑफ क्रिएटिविटी है। कस्टमर सर्विसेज में होगा तो स्टिल एक्सेप्टेड है। इफ देयर इज एनी होटल इंडस्ट्री, एनी कस्टमर सर्विसेज जिसमें जहां पे कनेक्टिविटी है, लोगों के साथ मिलना है, कनेक्शंस हैं, ओके, जहां पे नेटवर्किंग है, काइंड ऑफ नेटवर्किंग, ओके, तो दिस इज साइन ऑफ कनेक्शंस में काउंट होगा। ओके ओके सर, थैंक यू। और एज फार एज लोगो इज कंसर्न, तो लोगो में और ग्राफोलॉजी में एक्चुअली बहुत सारा वेरिएशंस है। बिकॉज लोगो जब होता है तो आप उसमें लोगो का इमेज है। राइटिंग जब आप लिखते हो तो आप राइटिंग लिख रहे हो, मतलब इसमें ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। व्हेनेवर यू राइट, तो दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस। कुछ भी आप लेटर लिख रहे हो, व्हेनेवर यू राइट, ठीक है। लोगो का इमीडिएट इफेक्ट होता है, पूरा का पूरा लोगो एक साथ में। जैसे आप स्टैम्प की वैल्यू होती है ना, जो सील है, जो स्टैम्प है, ये वन शॉट होता है, वन टाइम होता है। तो उसमें ग्रेजुअल मूवमेंट्स नहीं है, तो उसमें उस तरीके से एनालाइज नहीं होता जैसा आप ग्राफोलॉजी में एनालिसिस करते हो। उसकी वैल्यू वन शॉट होती है। जैसे प्रिंट हो गया, लोगो इज द वन शॉट, लोगो इज बेसिकली सील, ठीक है। तो सील में आपका वन टाइम है, एक बार में ही पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। तो उसका फिर उसमें मूवमेंट्स को डिफाइन दूसरे तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसकी वैल्यू जो है। और वो ह्यूमन का नहीं है, वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इमीडिएट जो है ग्राफोलॉजी और मतलब ग्राफोलॉजी जो ह्यूमन के लिए बात करते हैं, और जो कॉमर्शियल डिजाइनिंग है, जो सिमेट्री है, वो लोगोस को उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जो कि उसका बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, टाइपोग्राफी है, उसमें लोगो डिजाइनिंग है। और जहाँ पे कॉमर्शियल आर्टिस्ट जो यूज करते हैं, अलग अलग लेटर्स की वैल्यूज है। मैं थोड़ा सा सिमेट्री पे उस पे यार डिस्कस करने वाला हूँ। जो सिमेट्री है,
किसी लेटर के सिमेट्रिकल वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है बिकॉज मुझे 5 में कट ऑफ ही करना पड़ेगा, और बट इसमें आज कोई न्यू मेंबर्स आने वाले थे, तो आज कोई नए लोग नहीं है आई थिंक सो, अदर देन ट्यूलिप एंड ट्यूलिप ही हैं। ओके फाइन, चलिए आप शेयर कर सकते हैं, पेज 1 शेयर कर सकते हैं प्लीज एडमिन टीम। बेसिकली जो सिमेट्री की बात होती है, जब आप लेटर में जब सिमेट्री की बात करते हैं, एक दूसरे का कंपनसेशन जो होता है लेटर्स में, जो फॉर्मेशंस में, 1 सेकेंड, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, I think there is some issue. The screen is not visible, sir? No. No, no. Okay, just give me a This is minute. blank screen है। ओके, जो हम ये फर्स्ट की बात करते हैं, जहां पे ये ब्रेकिंग होता है, ये आपका मिडिल जोन है, ठीक है। तो समटाइम्स आपके फॉर्मेशंस में ब्रेक होता है ये। यस, How it's visible, थैंक यू। यस, कई बार होता है कि ये सेंटर वैल्यू जो है, उसका सेंटर इंपैक्ट जो होता है, कई बार ब्रेक हो जाता है, मतलब या तो लेटर्स नीचे चले जाते हैं जस्ट लाइक W, और N के जैसा ऊपर की लाइन या नीचे की लाइन ब्रेक हो जाती है, मतलब जोन्स ब्रेकिंग अगर है तो वो उसका राइटिंग का फॉर्मेशन, मतलब उनका सिमेट्रिकल वैल्यू जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं से। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग इफेक्ट, अगर ऊपर कट रहा है या नीचे कट रहा है। पहले आपको ये कट समझ में आ गया कि आपका जो बेसलाइन जहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो बेसलाइन अगर डिस्टर्ब होता है वहां पे रूल्स ब्रेकिंग इंपैक्ट होता है, नीचे ऊपर दोनों में भी ओवरऑल रूल ब्रेकिंग, रिबेलियस टेंडेंसी, ओवरबर्डन, एग्जॉस्ट, डेस्परेशन, ग्रीडी, एक्शन ड्रिवन एंड लग्जरी क्रेविंग है। जनरली ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, मतलब जनरली नीचे को अगर आप काउंट करेंगे तो ये सब वैल्यूज आएंगे उसमें रूल्स ब्रेकिंग वाले। ऊपर भी अगर कट होता है, ऊपर का भी पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो सेम मीनिंग होगा, बट वो थोड़ा सा अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो इंटेलेक्चुअल इस तरफ ज्यादा होगा, इंटेलिजेंस ड्रिवन ज्यादा होगा, बिकॉज ही इज कटिंग द सेकेंड लाइन। ऊपर की लाइन कट कर रहे हैं ना, ये वाली लाइन कट कर रहे हैं, तो उसमें उसका ओरिएंटेशन जो होगा वो आइडिया रिलेटेड होगा, मतलब वो मटेरियलिस्टिक नहीं होके इंटेलेक्चुअल होगा। समटाइम्स इट इज आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड एडवेंचर लविंग भी होते हैं जिन लोगों की लाइफ में, मतलब जो लोग ये ब्रेक्स करते हैं, या जो लोगों के ये मिडिल जोन्स कहीं ना कहीं से ड्रूपिंग हो जाते हैं, ड्रूपिंग इन आर्टिस्टिक वे। अब ड्रूपिंग का भी फॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा, पर जनरली ये लोग ब्रेक करते हैं तो आर्टिस्टिक होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, आर्टिस्टिक अप्रोच होता है, क्रिएटिविटी की वजह से वो लोग बाउंड्रीज में रहना नहीं पसंद करते हैं, दे डोंट वांट टू लिव इन सर्टेन बाउंड्रीज, बैरिकेड पे रहना पसंद नहीं करते। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर प्लीज, ये जो आपने ड्रॉ किया है ना, ये 3 लाइन वाली बुक है उसके ऊपर से दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग 2 लाइन पे लिखते हैं तो ये मिडिल जोन हमारी बेस लाइन को टच होता है, राइट? तो ये ऐसे 2 लाइन में लिख के दिखाओ ना कि कौन सा फॉर्मेशन ब्रेकिंग वाला काउंट होगा, क्योंकि ये तो 3 लाइंस वाली बुक में पता चलेगा, 2 लाइंस में कैसे पता अच्छा, चलेगा? 2 लाइन में भी 2 लाइन ही समझ आएगा, वो तो आपको कोई लाइन हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो तो इमेजिनरी, ये 2 लाइन हो गया अभी, डोंट कंसिडर रेड लाइन। तो सर यानी मैंने W यानी या N या कोई भी ऊपर की तरह लिख रही हूँ, तो मेरे को मिडिल जोन से अपर जोन का जो भी 2 लाइन में जाता है यानी प्रपोर्शन, वो काउंट करना है, दैट मींस। तो वो बिग साइज यानी बिग साइज राइटिंग नहीं हो सकती है, वो तो बिग साइज राइटिंग भी तो हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, इसमें ना अचिता फंडामेंटल कंफ्यूजन है यहाँ पे, साइज का और इससे कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा सा फंडामेंटल पे काम करो, बिकॉज फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होगा ना तो हर जगह आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे। साइज इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड जोन इज टोटली डिफरेंट थिंग, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद साइज एंड जोन। ओके, तो इसमें अगर मिडिल कोई सेंटेंस लिख के दिखाओ ना। 2 लाइंस का मीनिंग है, सपोज अगर हमने लिखा है, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट। ओके, सपोज
सपोज मैंने ये लिखा है, एक सेकंड, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? हाँ मैंने अगर ये जो ड्रूपिंग है, हाँ डेफिनेटली दिस इज बर्डन, बट ये स्टाइल के लिए भी अगर मैंने ये लिखा है सपोज, सर अपर जोन वाला भी एग्जांपल लिखो। ये मैंने काउ लिखा, राइट? हाँ हाँ ये जो ड्रूपिंग है, ये हाँ, ये हाँ। आर्टिस्टिक की वजह से हो रहा है, राइट? ऊपर की साइड की कैसे एक सेकंड, सपोज काइंड ऑफ Okay. ये जो है ना, ये जो है, ये ब्रेकिंग है, ये अपर पोर्शन ब्रेकिंग है। ओके ये मैंने एम किया, या मैंने, सर ये तो मैनिपुलेशन का ट्रेड हो गया ना। नहीं, मैनिपुलेशन कहीं से नहीं है, ये आर्टिस्टिक अप्रोच है, इसमें मैनिपुलेशन कहीं नहीं है ये। सेकंड हम ऊपर चला जाता है तो वी काउंट एज अ मैनिपुलेशन, नॉट इन अ सेंस No, ऑफ ब्रेकिंग। second हम bigger is self orientation या self improvement, self conscious। हाँ, self conscious में ये जो ड्राइव, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए। सेल्फ कॉन्शियस मतलब ही इज ब्रेकिंग हिज डिसिप्लिन ब्रेकिंग आता है, ये कहीं ना कहीं से डिसिप्लिन ब्रेकिंग है, बट दिस इज साइन ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो। तो अभी इसमें ओवरऑल राइटिंग का इम्पैक्ट देख के आपको इसको जजमेंट लेना पड़ेगा। इसमें ओवरऑल राइटिंग का ही पूरी वैल्यू लेके जजमेंट करना पड़ेगा। वाई ही, देखो हर जोन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स हैं, थाउजेंड्स क्रोर्स ऑफ पिक्सेल्स होते हैं एक लेटर्स में। जब आप इसका पिक्सल एनालिसिस करोगे तो देयर आर क्रोर्स ऑफ पिक्सेल्स, है ना? तो पिक्सेल्स में आप अगर उसके साथ में अगर ऊपर जाते हो, अगर आपकी वेव्स ऊपर जाती है, दैट मींस यू आर नॉट फॉलोइंग दैट फंडामेंटल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। व्हाई योर पीक इज टू हाई, है ना? आप किसी चीज में अगर हाई पिच और लो पिच दोनों को अगर एक्सट्रीम जाता है, दैट मींस यू वांट टू एंजॉय दैट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो इसीलिए इसमें नेगेटिव फैक्टर्स नहीं है, इसमें क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और एडवेंचरस भी होता है ये। बिकॉज अगर आपको क्रिएटिव खाली अगर बताएंगे और उसका दूसरा मीनिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवरऑल मीनिंग की सारी मीनिंग्स क्या होंगी उसमें, व्हाई ही इज गोइंग बियॉन्ड दैट लाइन। वो लाइन पे जाने का बहुत सारा मतलब है, वो रूल्स ब्रेकिंग भी हो सकता है, एडवेंचरस थिंकिंग भी हो सकता है ना? रिबेलियस जो है, रिबेलियस और एडवेंचरस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जो भी लोग रिबेलियस हैं वो लोग कहीं ना कहीं से एडवेंचरस और रिबेल, थोड़ा सा ब्लेंडिंग का डिफरेंस है। गॉट इट? जो लोग रिबेलियस होंगे, एडवेंचरस होंगे, थोड़ा सा रिबेल भी आएगा उसमें। एडवेंचर मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने का मतलब है। एडवेंचर करना मतलब नॉर्मल लाइफ से अलग करना है ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो वो अलग करना है। तो वो जो एडवेंचरस की जो है, जो थ्रिल है, बेसिकली थ्रिल जो है वो नॉर्मल लाइफ में नहीं है। थ्रिल का मतलब ही आउटस्टैंडिंग, कुछ तो आउटस्टैंडिंग है, यू वांट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? थ्रिल एडवेंचर उसके लिए, तो वो थ्रिल के लिए वो अपने नॉर्मल गाइडलाइंस को वॉयलेट करते हैं। ही इज वॉयलेटिंग दैट नॉर्मल लाइन, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट वाला फॉर्मेशंस में जा, जो नेक्स्ट जो एन है, नो पेज 1। कई बार ये स्ट्रोक्स आगे की तरफ जाते हैं, वो फ्रेंडली स्ट्रोक्स हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक्स हैं। नंबर 1, द ग्रीन नंबर 1, एन एंड एम। तो अगर वो आगे की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज फॉरवर्ड थिंकिंग, फ्रेंडली अप्रोच। एंड इफ इट इज कमिंग बैकवर्ड्स तो दिस इज सप्रेशन, विड्रॉल टेंडेंसी। ही इज विड्रॉइंग हिमसेल्फ, ही इज गोइंग बैक, और ही इज विड्रॉइंग हिमसेल्फ। अब विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी चीज को फॉरवर्ड मूव में कर रहे हैं लेकिन वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं से वो आई का जो है, आई वाला जो कॉन्सेप्ट था अंजना, उसका ही मीनिंग होगा कि ही इज कमिंग बैक। वो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने आप से कंफर्टेबल नहीं है, या उनको कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी चाहिए, राइट? तो वो पीछे अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज एंडिंग स्ट्रोक, इसको कंसिडर एंडिंग स्ट्रोक करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे, बट उसका मूवमेंट है, वो मूवमेंट बैक की तरफ है। देयर इज सम काइंड ऑफ क्रेविंग फॉर सिक्योरिटी, क्रेविंग फॉर
फैमिली, क्रेविंग फॉर सोसाइटी। ठीक है, चलिए पेज नंबर, सेकंड पेज कवर कर लें फटाफट तो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पेज नंबर 2, सिमेट्री में लेंथ और विड्थ का भी डिफरेंस बहुत प्रोमिनेंट होता है। एक सेकंड म्यूट करिए प्लीज, ऑल द मेंबर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। एडमिन प्लीज म्यूट करेंगे प्लीज। जब लेंथ और विड्थ का मीनिंग है किसी भी लेटर्स में, आइदर कैपिटल और आइदर स्मॉल, जब भी लेंथ अगर वर्टिकल है, लेंथ अगर ज्यादा है तो वो सैक्रिफाइस एस्पेक्ट है। सेविंग्स मोड है, सेविंग्स का मीनिंग, सेविंग्स का मतलब प्रिजर्व करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, प्रिजर्व करना। अलर्ट मोड है एंड रिसेप्टिव मोड है। दैट पर्सन इज वेरी मच कंसर्न टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स रियलिटी, टुवर्ड्स सेल्फ। ओके, तो वो अलर्ट एंड प्रिजर्व एंड रिसेप्टिव टेंडेंसी अगर लेंथ इज बिगर, और दिस इज लेंथ ओरिएंटेड है, अगर कोई भी फॉर्मेशन लेंथ ओरिएंटेड है। और अगर विड्थ ओरिएंटेड है, विड्थ ज्यादा है ना, सिमेट्रिकल विड्थ ज्यादा है, तो दिस इज बोल्ड थिंकिंग, बोल्ड एक्सप्रेशन एंड स्टबन की टेंडेंसी आ जाएगी। वेस्ट एफर्ट, मतलब जो भी एफर्ट करना है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट आ जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस एंड लेस सैक्रिफाइस, दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन, और दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग। तो ये अगर वाइडर है, विड्थ बड़ा होने से फिर ये वाले ट्रेट्स आ जाते हैं। तो ये आपका सिमेट्रिकल लेंथ और विड्थ का इंपैक्ट है किसी भी राइटिंग में, किसी भी जोन में, किसी तरीके के, अगर बड़ी छोटी जो भी फॉर्मेशंस का मीनिंग है। ठीक है, एनी डाउट्स? कुछ डाउट्स है तो पूछिए, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है ये। सर यहाँ पे हम अगर किसी की स्क्रिप्ट पूरी की पूरी, सपोज इट इज लाइक लेंथ लंबा है पूरी स्क्रिप्ट में, उसके जो एल है या जो उसकी स्टैंडिंग लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, उसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में, मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट अ स्क्वीज स्क्रिप्ट, पर वो लगता है देखने पे कि स्क्वीज्ड है क्योंकि उसकी लेंथ लंबी है। हाँ, तो लेंथ लंबी है तो वो लेंथ वाला फर्स्ट वाला इंपैक्ट आ जाएगा पूरी स्क्रिप्ट में सर, पूरी स्क्रिप्ट में, पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी में। ठीक है, बट आपको फिर ओवरऑल आपको ट्रेट्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। अभी एक चीज से आप खाली सारी चीजें आप एक्सपेक्ट मत करो खाली एक ही क्लास में। यू हैव टू डिफाइन डिफरेंट ट्रेट्स का मीनिंग, कौन सा ट्रेट्स क्या है, ई कैसा है, ओ कैसा है, वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। ये ओवरऑल सिमेट्रिकल वैल्यू है ना। ये ओवरऑल वैल्यू आपको पूरा ग्लिम्स में समझ में आएगा कि उसका वेरिएशन कितना है। सिमेट्री का मतलब होगा, या जो भी एलोकेशन ऑफ जोन्स भी होगा, जो भी चीजें होती हैं। सपोज मुझे 1 घंटे का वेबिनार करना है, 1 घंटे का प्रेजेंटेशन करना है, तो मैं 1 घंटा जो हमारा एलोकेशन ऑफ टाइम है या हमारा जो अलॉटमेंट ऑफ टाइम है वो किस चीज पे है? मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा हूँ, या मैं आपको कोई फंडामेंटल समझा रहा हूँ, या कोई आपको ड्राइंग समझा रहा हूँ, उसका एलोकेशन होता है। वो उससे आपकी पूरे वेबिनार की सिमेट्री कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो जाती है या ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो जाती है। तो सिमेट्री जो है बेसिकली वो सारी चीजों को डिफाइन करता है, बैलेंसिंग फैक्टर है वो, है ना। कौन सा किसको कंपनसेट क्या कर रहा है ना, कंपनसेशन एंड। सर हम इसको सेविंग मोड क्यों बोल रहे हैं? किसको? प्रेस यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग कि उसकी लेंथ लंबी है, ठीक है, मतलब ही गॉट मोर ऑफ लेंथ, तो वहां पे हम इसको सेविंग मोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कंप्रेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसका लेंथ लेंथ लंबा का मतलब ही यहाँ पे कंडेंस की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कंडेंस राइटिंग की बात कर रहे हैं, कंडेंस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल मतलब जब हम लेंथ से मतलब है हमारा, हम राइटिंग कंडेंस है, तो सेविंग्स का मतलब ये प्रिजर्व मोड में आएगा। ये आप जैसे आप मोबाइल कंप्रेस्ड बोल रहे हो आप? कंप्रेस मतलब हाइट बड़ी होगी। जब आप मोबाइल को चेंज करते हो ना, मोबाइल आप 2 तरीके से देखते हैं, स्क्रीन का रोटेट करते हो। जब आपका स्क्रीन रोटेशन करते हो ना, डेफिनेटली, ठीक है, तो आपकी सेम पिक्चर जो होती है उसका मोड चेंज हो जाता है, प्रोपोर्शनेट होता है। गॉट इट? आपकी पिक्चर जो है प्रोपोर्शनेट होता है, ऐसा नहीं कि एक वर्टिकल ही हो जाएगा। सर बेसिकली यानी
यानी जिनका अपर जोन और लोअर जोन ज्यादा होगा वो लोग एक कैटेगरी में आएंगे इन कंपेयर टू मिडिल जोन? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि अपर जोन ज्यादा होगा वही आएंगे, वो आपको ओवरऑल इसमें दोनों फॉर्मेशन सेम है। प्रोपोर्शन में नहीं इसमें होंगे अगर सपोज लेंथ और ब्रेड्थ नंबर 1 एक सेकेंड, नंबर 1 एंड 2 में एच नंबर 1 एंड 2 में दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, खाली आपको डिफरेंस है विड्थ का ही, लेंथ एंड विड्थ का ही डिफरेंस है। हाँ राइट राइट, लेंथ एंड विड्थ का ही डिफरेंस है। अगर आप ए में भी देखोगे तो वो सेम है, तो उसमें जोन का डेफिनेटली कहीं तो फर्क पड़ सकता है, बट हम ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां जोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा भी, हो सकता है नहीं भी पड़े जोन्स पे। मिडिल जोन लेटर्स में भी हमको ये देखने को मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, हम उसके स्ट्रक्चर्स को, हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, राइट? है ना? वो पूरा ओवरऑल फिट हो जाता है उसमें, वो जो भी लेटर है या जो भी फॉर्मेशन होगा वो फिट हो जाता है। मतलब उसमें आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या है, वो वर्टिकल वाली है या हॉरिजॉन्टल है? सर यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल लेटर्स की बात कर रहे हैं ना, अनसिमेट्रिकल लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, यानी बी आ गया, फिर ये जो स्मॉल ए आ गया, वो सब आ जाएगा अभी नीचे आएंगे ना, अभी वो चीजें भी समझ आ जाएगी। नीचे वाला डायग्राम के बाद में वो क्वेश्चन में आंसर कर लूंगा, ठीक है? नीचे वाला हमारा एक बॉक्स फॉर्मेशन है। जनरली हम बॉक्स राइटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, जब आप ये स्क्वायर पे लिखते हो, सपोज इसको आप इमेजिनरी समझने की कोशिश करिए कि ये जो बॉक्स है, जो ये सिमेट्री है, ये जो ये बॉक्स जो है जिसमें बी एंड डी है, ओके, तो देयर इज लेफ्ट वॉल एंड देयर इज अ राइट वॉल, एंड सर्टेन लेटर्स जो होते हैं वो सेंटर वॉल पे होते हैं। तो पहले लेफ्ट वॉल एंड राइट वॉल का मीनिंग है, अगर आप बी लिखते हो, व्हेन यू राइट बी, तो इधर जो बी आप लिख रहे हो, बी में स्टेम है, उसके बाद में जो राउंड फॉर्मेशन है वो राइट साइड में है, राइट? तो उसका जो मीनिंग है बी का, दैट इज राइट साइड वाला बी है। सेम मीनिंग उसकी मिरर इमेज होती है, वो राइट वॉल से लेफ्ट में है, आपका डी जो होता है वो लेफ्ट वैल्यू है उसकी। मतलब जो राउंड का वैल्यू है, पहले इसमें राउंड है फिर स्टेम है, तो वो बेसिकली उसको राइट वॉल का स्ट्रक्चर हम मानेंगे, ठीक है? जी अगर हम डिफाइन करते हैं तो जी का जो सेंटर वैल्यू है, जी का सेंटर वैल्यू है, इसलिए जी को हम लेफ्ट वाले बॉक्स में मानेंगे, मतलब बॉक्स नंबर 3 हम नीचे वाला बॉक्स मान रहे हैं, ठीक है? सर्टेन लेटर्स होते हैं जो उसकी सेंटर वैल्यू होती है, जो अगर ओ है, ओ की आपकी सेंट्रिक वैल्यू है, लेफ्ट में भी नहीं है राइट में भी नहीं है, आइदर कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल स्मॉल का मीनिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी दोनों जो है वो लेटर जो है एक दूसरे को सिमेट्रिकल वैल्यू है, ठीक है? डब्ल्यू भी है वो सेंटर वैल्यू पे काउंट होगा, आई सेंटर वैल्यू काउंट होगा, एम सेंटर वैल्यू काउंट होगा, आर एस टी यू वी एक्स जेड, सीधा द सेंटर वैल्यू वाले सेंट्रिक वैल्यू के इस पे काउंट होते हैं इतने लेटर्स इसकी फैमिली में, ठीक है? और सर्टेन लेटर्स में वो आपका लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट हो जाता है। अब लेफ्ट एंड राइट अलाइन, सर यहाँ पे ये जी जो है, हमने लेफ्ट क्यों लिया, इसको राइट क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका जो स्टैंडिंग लाइन आएगा वो राइट की तरफ आएगा, ए बना के। नहीं, जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू जो है ओवरऑल, एफ भी, इसमें एक लेटर एफ मिसिंग है, एफ की भी वैल्यू सेंट्रिक वैल्यू है, एफ जो है वो भी सेंट्रिक वैल्यू है, बिकॉज एफ का भी फॉर्मेशन कई बार दोनों तरीके से जाता है, मतलब एफ की सेंट्रिक वैल्यू इधर भी हो सकती है और एफ की सेंट्रिक ये वैल्यू इधर भी हो सकती है। तो एफ जो है वो आपका सेंट्रिक वैल्यू में जाएगा, वो सेंटर वैल्यू में जाएगा। 1 सेकेंड, ये एफ मेरा छूट गया था, ये एफ की वैल्यू भी हम सेंटर में लेते हैं इसको, राइट? आप देख पा रहे हैं? यस सर। तो इसमें जो है ना सर, इन सब का इंटरप्रिटेशन एक ही है ना सर? जैसे 1 लेंथ 2 विड्थ, इंटरप्रिटेशन सेम है फॉर ऑल द लेटर्स? इंटरप्रिटेशन सेम है, लेकिन इसकी कॉग्निटिव वैल्यू अलग होगी। जब आप लेफ्ट में देखोगे और राइट में देखोगे, तो इसलिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चा वो जजमेंट नहीं ले पाता, बिकॉज ये ब्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसको प्रोसेस करते हैं।
Okay. So जब Because इसके u is in the इसके center value, why not n, sir? हाँ So अगर u centric value है तो why not n? एन भी हो सकता है, यस एन भी हो सकता है, बट डिपेंड्स क्या है ना, यू को हमने काउंट किया है, यू में भी देखो यू और एच में जैसा है, अब एच को आप कौन सी वैल्यू काउंट करेंगे, एच को आप लेफ्ट वैल्यू काउंट करना पड़ेगा, राइट? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, 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 sir. Yes, So sir. थोड़ा yes, सा h can be मैं counted as left हाँ, value. एक सेकंड, मैं भी स्क्रीन पे नहीं हूँ अभी। इसमें डिफाइन करता है कि यू की वैल्यू फॉर्मेशन कैसा है, बिकॉज ये जो है बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब यू में अगर आप एक ड्रॉप, मतलब यू दो तरीके से लिखे जाते हैं, सर एक यू होता है, स्क्रीन पर दिखाइए ना। मैं एक सेकंड अभी स्क्रीन यूज नहीं कर सकता हूं अभी मैं जहां पे हूं अभी स्क्रीन, एक सेकंड के लिए जस्ट 2 मिनट मेरे को पॉज चाहिए। यू की वैल्यू जो है, कई बार यू में लास्ट वाला फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको कई बार इंटरचेंज हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा, कोशिश कर रहा हूं, एक सेकंड आप मोनिका जरा 2 मिनट आप क्लास लीजिए, मैं आपको अटेंड कर रहा हूं प्लीज। I have one question कि Yes, अगर please. हम H को सर लेफ्ट वैल्यू ले रहे हैं तो D को अगर हम राइट वैल्यू ले रहे हैं तो हम G को राइट वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं सर? That is my question. That G should be a center value. इधर से अगर हम F को सेंटर वैल्यू ले रहे हैं तो सर उस हिसाब से तो G भी मोनिका, हमारा सेंटर वैल्यू में आना चाहिए। आप कवर करिए, पूरा फंडामेंटल पूरी क्लास है इसके ऊपर, आप कवर करिए 2 मिनट के लिए, ट्राई करिए, तो ट्राई। Sir, I had the same question, right? So I think sir is going to, ये जो एक point है, sir is already sir has already told that this is a full-fledged more like class है उसमें, तो I think he'll be explaining it later only. यहाँ पे ये है कि हम, मेरे को जो समझ में आया है कि we are talking about the walls and we are talking about the standing lines, where the standing line is coming and how the formation we are like making the formation of the C's and B's, and जो हम अपना ovals बना रहे हैं उसकी और standing line की कैसे positioning होती है, वो हम उसकी alignment के बारे में बात कर रहे हैं। तो I think sir can answer this question after he is back with the break. So I think we can give him, I think sir is back. I am not feeling well actually. 1 second. हाँ, yes, question क्या था? Sir question था कि There are अगर two type of center U. value There are two type of U. Yep. ओके, इसमें होती है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बॉक्स चेंज हो जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मेशन होगा तो दिस इज सेंट्रिक वैल्यू, इसकी वैल्यू सेंट्रिक वैल्यू होगी। अभी दोनों फॉर्मेशन में बहुत फर्क है, बिकॉज इसमें स्टेम है, दिस इज स्टेम बेस्ड एंड, कई बार स्टेम बेस्ड नहीं होता है, इसकी वैल्यू अलग है, इसका पूरा सेंस अलग हो जाएगा। गॉट इट? आप समझ रहे हैं? Yes sir. आपको क्लियर समझ आ रहा है? तो ये इसकी वैल्यू होगी, तो ये स्टेम जब बनेगा ना तो स्टेम का वैल्यू चेंज हो जाता है। एच में एच और एन का भी स्ट्रक्चर सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, हाफ कर्व है, राइट? तो इसलिए डिपेंड्स कि उसका एन कौन सा हो रहा है, उसमें डिफाइन करेगा, उसका मीनिंग समझेगा। लेफ्ट वॉल में चला जाएगा कौन सा? सर जब लेफ्ट वॉल में आ जाएगा, हाँ लेफ्ट वॉल में आ जाएगा, हाँ एन जो होगा वो लेफ्ट वॉल में चला जाएगा। तो सर जो G का कंफ्यूजन है वो दूर करिए ना। G में स्टेम जो है वो मेरा जो G का स्टेम है वो राइट हैंड साइड पे आएगा। क्या चीज, क्या हो गया? मेरा फॉर्मेशन G में होगा, I'll be making a curve and then वो मेरा स्टेम आएगा स्ट्रेट लाइन G में। तो क्या वो राइट हैंड साइड नहीं होना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन मैं लेता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से, थोड़ा सा आपको समझ आए, इसलिए मैं आपको लेता हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन एक्चुअली ये टॉपिक्स लेने जैसा नहीं होता है 1 घंटे के क्लास में,
यू गॉट इट? मतलब आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको पूरी Got चीजें your point. समझाऊं कि इसके पीछे पढ़ना क्या होता है। Hmm. ये पूरा 6 महीने का पूरा कोर्स है इसके ऊपर, पूरा जो है ना स्ट्रक्चर सिमेट्री पे पूरा कोर्स है, पूरा साइंस है इसमें, रॉकेट साइंस है पूरा। यू गॉट इट? थोड़ा सा ट्राई करने की समझने की कोशिश करिए कि जी जो है, जी वाला लेफ्ट पे क्यों आता है जी? क्योंकि जी की जो स्टैंडिंग वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो सेंटर वाली है, ये आपके सेंट्रिक नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड डिफाइन करता है। ये बेसिकली इसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर का लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर जो प्रोसेसिंग होता है उसके हिसाब से ये बॉक्स है, ये बॉक्स का जो थ्योरी है, राइट? तो जब आप करते हो, अब अगर इन केस कई बार अगर जे को आप लेते हो ना, जे की वैल्यू सेंट्रिक वैल्यू होगी। आप समझ पा रहे हैं? Sir, could you रिस्पॉन्ड नहीं just करेंगे तो repeat मुझे it, please? जे की सेंट्रिक वैल्यू होगी, जे डॉटिंग है जहां पे, जे की वैल्यू सेंट्रिक वैल्यू होगी। ओके, बिकॉज उसमें डॉट आता है। नाउ आई एम रेडी। ओके, हाँ, जे की वैल्यू होगी, जे की वैल्यू सेंट्रिक वैल्यू में काउंट करना पड़ेगा आपको, राइट? बिकॉज डॉटिंग है ना, तो उसका अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट स्ट्रेट पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपका क्वेश्चन मोनिका भी क्रिस्प पूछिए कि आप जी को आप इसमें क्यों नहीं काउंट कर रहे थे? सर जी का मेरा है अगर डी, क्योंकि देखो जी जो है ए जो है, अगर उसको स्टेम लगा दें तो इट विल बिकम अ डी, अगर हम उसको नीचे लूप लगा दें तो इट विल बिकम अ जी, राइट? तो उसके मुताबिक अगर डी इज अ राइट हैंड वॉल, तो यहाँ पे जी भी राइट हैंड वॉल पे जाना चाहिए। नहीं, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अलग से आपका क्वेश्चन ये है, राइट? तो डी की वैल्यू इंडिपेंडेंटली जब स्ट्रेट लाइन पे होगी ना, तो नीचे का जोन नहीं होगा, तो वो दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। ओके, अभी अगर आप ए को डिफाइन करते हो, ठीक है, तो ए की सेंट्रिक वैल्यू आप कहां पे ले रहे हो? ए को मैंने कहां पे डिफाइन किया? आपके हिसाब से ए कहां पे जाएगा? लेफ्ट। तो डी भी लेफ्ट होना चाहिए था इस हिसाब से। तो हाँ, ए को कहां लोगे आप? So will it be same for the Y also? यस, वाई का भी, हाँ, वाई भी आपका जो है वाई के सेंट्रिक, वाई लेफ्ट में आएगा। So, but एक सेकंड में, Y तो just H का उल्टा है। that is the एक सेकंड, आप मेरे कोई कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, तो इसमें ही आएगा ना ये। सर आपने बताया कि लेफ्ट वॉल विल बी N and H। एच भी लेफ्ट वॉल में आएगा ना। एक सेकंड, वाई को आप बोल रहे हो, वाई आपका लेफ्ट वॉल। ठीक है सर, गॉट इट। वाई लेफ्ट वॉल आएगा ना, गॉट इट सर। तो एच भी लेफ्ट वॉल ही आएगा ना। राइट सर, गॉट इट, आई गॉट वाई इट। लेफ्ट वॉल आएगा, सेम अपर आएगा उसका। ठीक है, राइट सर, राइट। अब सॉरी ए को आप कंसिडर कहां पे करोगे? लेफ्ट। हाँ, ए कभी भी लेफ्ट वाले में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये लेफ्ट में आएगा। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया आपको? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है, ठीक है, ए की वैल्यू जो है सेंटर वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर आप बोलोगे कि डी इधर आना चाहिए। जो स्टेम आएगा, अगर फुल स्टेम आता है तो फुल स्टेम के हिसाब से उसका फॉर्मेशन काउंट होगा। इफ स्टेम इज फुल तो वॉल में आ जाएगा। एक सेकंड में आपको ये समझाऊं। आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नहीं तो मैं वापस इसको और एक्सप्लेन करूं। यस सर, गॉट इट सर। आपको समझ में आ गया ये 4 फॉर्मेशन अलग अलग क्यों जाएगा? अच्छा, अगर हम पी की बात करें तो पी किधर जाएगा? स्मॉल पी को किधर आप लोगे? सर लेफ्ट में ना, क्योंकि स्टेम पहले है ना, तो लेफ्ट में ही आएगा ना। हाँ, स्टेम पहले, इसलिए वो पी और बी दोनों सेम ही फैमिली है। पी एंड बी जो है सेम फैमिली है। एक का एक्सटेंशन अपर एक्सटेंशन है, एक का लोअर एक्सटेंशन है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज वो सेम है। ठीक है, चलिए सॉरी सर, हाँ बोल।
means you are trying to say that clockwise and anti-clockwise, if it is clockwise, it comes in the left stem. Your name, please. I can't hear you. You just your name, please. Ruchita, yes, sir. हाँ रुचिता, हाँ बोलिए बोलिए. So you mean to say that clockwise होगा तो it will come in the right stem, and anti-clockwise होगा तो left stem आएगा, left wall आएगा. In some cases exceptional भी है इसमें. It's not always necessary कि anti-clockwise या clockwise same आएगा, because उसका upper stroke भी count करता है उसमें, कि ऊपर का structure क्या होगा. Anti-clockwise is middle zone वाला structure. Yes. Right. Upper zone को भी consideration में वो हो सकता है, वैसा वर्सा change होता है किसी चीज में. इसमें हम लोग बहुत सारा डिस्कशन हम करते हैं पैटर्न्स के क्लासेस में कि अपर जोन्स जो है उसका फाउंडेशन जो है वो अलग होता है, लोअर जोन्स का अलग होता है. देयर आर डिफरेंट चैनल्स. तो मिडिल जोन में जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का एक मीनिंग होता है, मेन जो स्ट्रक्चर है, राइट. बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज को हम या एंटी क्लॉकवाइज को किसी स्पेसिफिक, बिकॉज डी को हम राइट में रख रहे हैं, वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है. वी कंसिडर डी को हम राइट वॉल पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें जरूरी नहीं है कि सारे एंटी क्लॉकवाइज वाले लेफ्ट या राइट में आएंगे. डिपेंड्स कि उसके साथ कनेक्टिंग स्ट्रोक कौन सा है, उसके हिसाब से उसका चैनल चेंज हो जाता है. व्हाट इज द सप्लीमेंटरी स्ट्रोक के हिसाब से उसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है. पूरा लेटर का वैल्यू, लेटर का परसेप्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि सेम लेटर का स्ट्रक्चर हो सकता है किसी दूसरे स्क्रिप्ट में. उर्दू का अलग मीनिंग है ना. हम कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी लेंगे कि उर्दू में अलग होगा, आप उसको बंगाली में अलग तरीके से लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू, सेंट्रिक वैल्यू कहां पे काउंट होगी. और उसके बाद में पर्सनालिटी डिफर क्यों है, अलग अलग कम्युनिटीज में पर्सनालिटी डिफर क्यों होती है, वो लेटर फॉर्मेशन की वजह से है ना. व्हाई इट राइटिंग पैटर्न्स इफेक्ट योर थॉट प्रोसेस एंड योर पर्सनालिटी, योर बिहेवियर पैटर्न, हाउ यू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. आप अगर अमेरिका जाके 10 साल रह जाते हो तो आप अमेरिकन के जैसे बिहेव क्यों करने लगते हो. So, but capitals are having much better symmetry value. Yes, that's why कैपिटल में इमोशंस नहीं होते ना, इसीलिए कैपिटल में इमोशंस होते नहीं है. कैपिटल इमोशंस नहीं, बिकॉज सिमेट्री है. दैट इज बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज. there is no emotion. Most of the letter 85% 90% वो सिमेट्रिकल ही है. वो आप बीच से कट करोगे तो दोनों इक्वल है, और जो इक्वल नहीं है वो भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट है. जैसे ई और एफ का दोनों का मीनिंग सेम है, एक क्रॉस बार नहीं है, राइट. तो पूरा सिमेट्रिकल वैल्यू पे ही है, इसीलिए उसमें इमोशंस काउंट नहीं होता. दैट इज बेसिकली टेक लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज है. ओके, इसलिए पूरा उसमें इमोशंस आप काउंट नहीं कर सकते हो जो खाली कैप्स में लिख रहे हैं, है ना. कहीं ना कहीं से इमोशंस उसमें हिडन है, हिडन इमोशंस है, और आइदर रिवील नहीं है वहां. ठीक है, चलिए आज मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. एनी क्वेश्चंस इफ यू कैन आस्क. हाँ प्लीज. सर ये आपने बोला लेफ्ट सेंट्रिक है, राइट सेंट्रिक है, एंड सेंट्रिक वैल्यूज वाले हैं, लेकिन तीनों के मीनिंग क्या अब हम लोगों को कंसीडर करना है. सेंट्रिक वाले है तो उसका मीनिंग क्या काउंट करना है, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का. इसका क्लास हम लेंगे. अभी तो हमारा जो मैराथन होगा मे भी शायद हम उसमें ले लेंगे. बहुत सारा मीनिंग है उसका, मीनिंग हम आपको डिफाइन करेंगे. इसका मीनिंग क्या लेना है, कैसे लेना है, ठीक है. So could you just explain the scientific things happening in the brain with the neuron and the nerves and nerve endings? Yes. I can explain also and I can show also. You can see also the online. सर अभी बता दीजिए सर थोड़ा सा. नहीं अभी नहीं मालूम पड़ सकेगा. अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा, आज मेरे को मीटिंग है कुछ, मैं नहीं करूंगा. मतलब आपको थोड़े टाइम के बाद में आपको ब्रेन को कौन सी राइटिंग कहाँ पे इम्पैक्ट करती है, इट्स अ ह्यूज, पूरा उसमें स्ट्रक्चर, पूरा उसका कोर्स है. इफ एनीवन इंटरेस्टेड आई कैन शेयर सर्टेन. आप गूगल करोगे, गूगल पे काफी सारी चीजें हैं, अवेलेबल हैं, काफी सारे रिसोर्स मटेरियल है. आई एम इंटरेस्टेड इन आई कैन शेयर. मैंने कल ही इसमें से जो टॉपिक्स लिए हैं उसमें जो बातचीत किया, रिसर्च किया, वो काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन है. इफ एनीवन इंटरेस्टेड द सिमेट्रिकल पार्ट्स पे, इसमें काफी सारा है, मैं आपको भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे भी शेयर करूंगा. शेयर कर दीजिएगा सर. लास्ट क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा सर. Sir, last question. So please share, because in the marathon I have the topic
the science behind graphology, तो थोड़े से ओके yeah. ओके, वो हम टॉपिक कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, नो इशू। हाँ अर्चिता, योर क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन, ये प्रतिभा जी ने मास्क क्यों पहना है अभी? हम लोग वो को तो प्रतिभा है जी को नहीं पूछो, बाकी। प्रतिभा जी को अरे पूछो। I'm outside somewhere where there is no social distancing, so I'm wearing a यस यस mask. यस Plain class. यस Okay. यस, वो क्वेश्चन प्रतिभा ही आंसर कर सकती है। ओके, बाय मिस्टेक कुछ हैंड्स हो गया। यस ओके, एनीथिंग एल्स? Rajesh sir, can you explain what this H is? इसमें दिस इज कॉम्प्लिकेशन, राइट साइड कॉम्प्लिकेशंस है। दैट पर्सन इज, एक सेकंड जस्ट एक बार जूम करिए, इसका फॉर्मेशन कैसा है। ओके, देयर इज some complication in execution. Okay, he wants to store more ideas in execution. Execution में ज्यादा ideas store करना है। Okay. ठीक है ना, दिस इज प्लानिंग एंड दिस इज एग्जीक्यूशन। बट ये लोग कभी भी एग्जीक्यूशन करने से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट ज्यादा करते हैं। दे कलेक्ट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन, है ना। तो टाइम टेकिंग डिसीजन भी टाइम टेकिंग होगा। This Sir, kind of just look at this whole word happy. Can you just tell me what it is mean? दिख रही है आपको happy? हाँ, हैप्पी का मीनिंग यही होगा। नहीं, इसमें आप थोड़ा सा स्पेसिफिक बोलो तो हम बता सकते हैं कि क्या आप पूछना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट? इसका इमोशन, is it truly happy person or is he No, disturbed? he is hiding certain facts. ये कहीं ना कहीं से फैक्ट्स हाइडिंग कर रहा है, और इस इंसान को जो भी कुछ लाइफ में करना है वो लाइफ में करने को नहीं मिला। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इमोशनल इश्यूज ज्यादा है, सप्रेशन ऑफ इमोशन ज्यादा रहेंगे। बिकॉज इसमें आर्टिस्टिक ये जो राइटिंग है, इसमें आर्टिस्टिक ब्लेंड एंड टेक्निकल ब्लेंड दोनों है। हाँ, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं से मदर फादर का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है, थिंकिंग डिफरेंस है। एंड अभी किसका है मालूम नहीं है, बट इनको स्पाउस के साथ काफी सारा प्रॉब्लम होंगे ये टाइप के राइटिंग लिखने वाले लोगों को। because H is broad also. H का लिखना वो broad है। ब्रॉड है एंड एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। मतलब जो राइटिंग का फॉर्मेशन है, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस आर मोर। तो वो फिर क्रेविंग बढ़ती है, क्रेविंग ज्यादा होती है, क्रेविंग बढ़ती है। एक बार वापस से आप दिखा सकते हैं। A is slanting and yeah, दिख रहे हैं happy। और जूम करना। This is the maximum I can do. हाँ, Y का और H का ये जो नीचे का स्लांट जो है ना, वो स्लांटिंग होने की वजह से और स्पीड में दोनों में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है कोई भी मतलब अपलाइंस के साथ में या सीनियर के साथ में ऑलवेज। एक तो रिसेप्टिव लैक ऑफ रिसेप्शन होगा बिकॉज ऑफ H is wider। ले सकते ना, he can't work well with a team ना। No, he is very independent person। Yeah, okay, thank you sir। Independent because this is wide वाला होगा ना, तो कभी भी एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी। हाँ, स्टबन एंड इंडिपेंडेंट और वो वाइडर वाला होगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? स्टबन आई अंडरस्टैंड, वी आर सेइंग लेस सैक्रिफाइसिंग होगा, पर इंडिपेंडेंट क्यों है? सेल्फ सेंटर्ड है पर इंडिपेंडेंट क्यों? वाई कंप्लीशन नहीं है ना। ओके ठीक है। वाई कंप्लीशन नहीं होगा तो इनहेंस करेगी, सारी वैल्यू इनहेंस कर जाएगी। राइट। जो सैक्रिफाइसिंग की एबिलिटी जो होगी ना, वो लेस सैक्रिफाइस को इनहेंस कर जाएगा। वाई कंप्लीशन नहीं है। ओके सर, ठीक है, चलो ओके। हाउ वाज सेशन टुडे? आई थिंक अरुणा भी आ चुके हैं, न्यू मेंबर नहीं है अरुणा। Yes sir। ओके, हाउ वाज सेशन टुडे? बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मैं 1 घंटे पहले मैं नहीं था कि मैं शायद 1 घंटा भी बोल पाऊंगा। बट there's some kind of weather change, nothing serious, but some weather change or something, तो वो भी काफी सारा। Always your session was very knowledgeable। Okay sir, so that is why I and just join our marathon। हम 26 तारीख से 1 हफ्ते का पूरा नॉन स्टॉप वेबिनार कर रहे हैं। तो उसमें आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए या जो भी लोग आना चाहें। तो वी क्रिएट अ बिग रिकॉर्ड, 171 आवर्स नॉन स्टॉप, काफी सारे स्पीकर्स बोलने वाले अलग अलग टॉपिक्स पे। एनीवन कैन ज्वाइन एनी टाइम, जब भी आप ज्वाइन करना चाहे वो पूरा शेड्यूल आपको आ जाएगा।
हाँ हाँ तो जस्ट टेल योर फ्रेंड्स एंड बच्चों के लिए भी करिए, बच्चों के लिए भी काफी सारी एक्टिविटीज होगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। तो वो हम लोग प्लान कर रहे हैं 26 जनवरी ऑनवर्ड्स, गुड गुड है ना। दैट इज कॉल्ड दिस हम 2021 हाँ हम हैंड राइटिंग यूनिवर्सल मिशन। ऑल द ठीक है, तो वो हम लोग हाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अटेम्प्ट करना है। और 23 तारीख को एक बड़ा इवेंट होगा जो कि अभी सरप्राइज है, हम आपको बताने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। तो 23rd इज वर्ल्ड हैंड राइटिंग डे, तो डेफिनेटली वी आर प्लानिंग समथिंग। तो वो हम लोग 23rd को करेंगे। एंड स्टे ट्यून ऑलवेज, सब लोग आप लोग आते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। The WhatsApp number is आपका Zoom का वो ID नंबर है, वो है WhatsApp नंबर? हाँ, व्हाट्सएप नंबर वही है, जूम आईडी नंबर है, और दूसरे नंबर भी हैं, दोनों नंबर है, कोई भी नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिए 9833418777। ठीक है, Okay, thank you, so sir. if you want to ask anything, you can text me or you can WhatsApp me. WhatsApp कर लीजिए, Telegram भी है, सारा कुछ है, तो आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir. Get well soon. Hello.